Hi, good morning, everybody. I hope you may be fine. And today we will start lecture number 17, part 6. Lecture number 17, part 6 deal with modal verb as could and might. And the topic could and might is interesting, but it is much confusing because the differences between the usage of could and might is much narrow, that which confuse the candidate where we have to use the could and where we have to use the might. And now today we will know about its differences, minor differences, in such a easy and a simple way that you will understand the differences between the could and might very easily with respect to their usage. Now we come to the point and know about the differences between the usage of could and might. And now could, number one, could and might both are used for present time and as well as for past time. Number one, we know the past time. Could may be used for the past of can, means the can is used yani can express the ability and capability of any person or anything in a present time, but the could is used in the place of can. It means if you have to express the ability and capability of any person or any things in a past time, then we will have to use their could. Just like, for example, now the example is I can swim across the river, means it express I ability of I, which he means I swim across the river. If we have to express such a capability in a past, then we will use the could in place of can, and we convert the can into could. I could swim the river. I could swim across the river, means the can become the could, can is converted into could, and it will express the ability and past ability and capability. And now the same we come to the might. The first point, there is also the past time. Could is also used for a past time. It is the past of may. It means the might is the past of may. Just for example, I thought he might be at home, means it shows the past time. It is used for the past of may, and may express the permission, possibility, and etc. Number second point is present time. The could can be used for present time. If in any sentences you have a less positive, means less certainty and more hesitation, then we will use their could. Just for example, I could attend the party, means there's less positive, less certainty, but hesitation is more. If you have a less possibility, means a less certainty and more hesitation, then we will use their could. Same as if we discuss the point, if we will see the second point of the might, it is similar, but there is a minor difference. It is also used for a present time, but number A point is less positive. There is a less positive, but there is no hesitation. It means there is much certainty here, much surety here. For much surety, then we will use here might. Like for example, it might rain tomorrow. It means now it might rain tomorrow. There is a much certainty than rather than I could attend the party, means there is a much certainty in this sentences of the might instead of could. And the second point, we come to point B, the could B point. Could is also used for polite request. If you have to use and point B, could can be used for polite request. If you have to make a polite request with anybody who is respectable, yeah,
as a stranger, yeah, unknown to him, you want to talk about him with a polite request, then you can use the could. Like for example, could you pass me the salt, and we will use there could. Same as if we have to use there the might, and there must be there a less polite request. If you have to make a less polite request to anybody, mostly it is the might is used for polite behavior when anything who is close to you, who you are means who is your friend, then you are close to him, you are kith and kin, then you can use their might, because you have no such hesitation with him who is not a stranger to him. Then you will use their might. Might I borrow your bicycle? I hope you may understand it easily. If you have any problem regarding this topic, kindly you can ask me, comments me. Take care your health and remember you in your prayers. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17 पार्ट 6, और लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 6 डील करता है मॉडल वर्ब एज कुड एंड माइट। यानी कि आज हम जानेंगे कुड एंड माइट के मतलब और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो जानेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग की वजह यही है कि इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। उस माइनर के डिफरेंस ना समझ आने की वजह से कैंडिडेट्स को इसके यूजेज में परेशानी होती है। वो कुड की जगह माइट यूज़ कर जाते हैं, माइट की जगह कुड यूज़ कर जाते हैं, या फिर इन दोनों का ही उनको सही इस्तेमाल नहीं आ रहा होता। इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कुड कहाँ यूज़ करना है और माइट कहाँ यूज़ करना है। तो इससे मतलब आज हम डिटेल में जानेंगे और उस माइनर जो डिफरेंस है उसको जानेंगे, ताकि आइंदा के लिए ये परेशानी हमारी दूर हो जाए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कुड एंड माइट के दरमियान डिफरेंस। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास कुड। कुड पे हमारे पास नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है पास्ट टाइम, यानी कि कुड को पास्ट टाइम के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और प्रेजेंट टाइम यानी कि सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास प्रेजेंट टाइम। सेम इसी तरीके से माइट भी इसी तरीके से पास्ट में भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट टाइम में के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं कुड के फर्स्ट पॉइंट पे, पास्ट टाइम पर। पास्ट टाइम से मुराद ये है कि कैन जो कि हमारे पास एबिलिटी शो करता है कोई भी काम के, या कोई भी शख्स जो काम कर रहा हो उसकी जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी, जिसमें वो कैन जो उसकी एबिलिटी शो कर रहा होता है किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की, उस कैन को हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें उस एबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो पास्ट टाइम में, तो वहाँ हम कैन के बदले क्या लगाते हैं, कुड, यानी कि वही एबिलिटी पर हम बताते हैं पास्ट में, तो वहाँ कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में, यानी कि वहाँ कुड यूज़ होगा जहाँ आपको कोई भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी बतानी हो किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की पास्ट में। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूज़ हो गया हमारे पास किस चीज़ का, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम का, पास्ट टाइम का, वो भी किसका, कुड का। यानी कि कैन कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से कैन कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में और वो बन जाता है कुड। इसी तरीके से माइट है, माइट जो है वो पास्ट है किसका, मे का, जहाँ यानी कि प्रेजेंट में हम मे यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से अगर हमें उसको प्रेजेंट को कन्वर्ट करना हो पास्ट में, यानी कि पास्ट में बात करनी हो, तो मे के बदले फिर हम लगाएंगे माइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थॉट ही माइट बी एट होम। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कुड की एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, इसमें कैन की हमने एग्ज़ाम्पल दी हुई, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं दरिया के पार तैर सकता हूँ। अगर इसी जुमले को प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट में है तैर सकता है, इसी को अगर हम कन्वर्ट करें पास्ट में, तो हमें कुड लगाना होगा। देखें, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं दरिया के पार तैर सकता था। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आया कुड एंड माइट का। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टाइम, जो एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम, यानी कि हमारा मौजूदा हालात हैं, उसमें हम कुड एंड माइट को कैसे यूज़ करेंगे, हम वो जानेंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्सों में डिवाइड हुआ है प्रेजेंट टाइम। नंबर 1, अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही हो, लेकिन
जुमला क्या हो वहाँ पर, लेस पॉजिटिव हो और मोर हेजिटेशन हो, यानी कि मोर हेजिटेंट हो। इससे मुराद ये है कि लेस पॉजिटिव से मुराद ये है कि यकीन कम हो और हेजिटेशन हिचकिचाहट ज़्यादा हो, ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो, सर्टेनिटी कम हो, यकीन कम हो। तो ऐसी हालत में हम क्या यूज़ करते हैं, कुड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई कुड अटेंड अ पार्टी, यानी कि करना तो चाहता है वो पार्टी अटेंड, लेकिन शायद ना कर सके। ऐसे जुमलों की पहचान ये होती है उर्दू में, मोस्टली इन जुमलों के शुरू में आता है हो सकता है, यानी कि हो सकता है मैं पार्टी अटेंड कर सकूं। शुरू में हो सकता आता है और एंड में कर सकूं। तो ऐसे जुमले जो होते हैं उनमें क्या होती है, हमारे पास सर्टेनिटी कम होती है और हेजिटेशन हिचकिचाहट ज़्यादा होती है। सर्टेनिटी भी कम और यकीन भी कम और हिचकिचाहट ज़्यादा हो। इसी तरीके से हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम माइट की तरफ चलते हैं। वहाँ उसका जो ए पॉइंट है वो क्या है, सिर्फ लेस पॉजिटिव है, यानी कि यकीन कम है, हेजिटेशन नहीं है, वहाँ हिजाब या हिचकिचाहट नहीं है, सिर्फ सर्टेनिटी कम है। सिर्फ सर्टेनिटी कम होने की वजह से वहाँ हम माइट यूज़ करेंगे, जैसे इट माइट रेन टुमारो। उर्दू में इनकी पहचान योगी से जुमलों की हो सकता है, यानी कि शुरू में हो सकता है आता है, जिस तरीके से सेम बिल्कुल जैसे कोड में आ रहा था, लेकिन इसके जुमले के आखिर में जो जुमले हमारे पास जो सेंटेंस एंड होता है उनमें वर्ड हमारे आ जाते हैं हो जाए। जैसे हो सकता है जो जुमला मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो जाए। इसमें क्या है, सिर्फ सर्टेनिटी की बात है, सर्टेनिटी कम है, हेजिटेशन नहीं है। और जो कोड का पार्ट ए था उसमें हमारे पास सर्टेनिटी यानी कि यकीन भी कम था और हेजिटेशन ज़्यादा थी। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि कोड में जो हमने लेस, यानी कि कहने का मकसद ये हुआ, कुड के पार्ट ए में अगर हमारे पास 40% सर्टेनिटी होगी तो हम कुड यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 60 होगी, यानी कि सर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, यकीन ज़्यादा होगा, श्योरिटी, तो फिर हम माइट यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इसके बी पॉइंट पर। बी पॉइंट जो कुड का ये है वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर किसी को आपको रिक्वेस्ट करनी हो कोई भी चीज़ देने के लिए या लेने के लिए, तो हम वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोड यूज़ करते हैं। अब रिक्वेस्ट में भी फ़र्क है। इसी के बी पॉइंट पर अगर हम जाएं माइट के, तो वहाँ पे भी लेस पोलाइट रिक्वेस्ट है। वहाँ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट तो है लेकिन लेस है। लेकिन बी में यहाँ कोड में क्या है, लेस नहीं है, पोलाइट है। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट कोई अजनबी शख्स होता है, तो आप उससे क्या करते हैं, बिल्कुल मौदबाना तौर पर, या आपसे उम्र में बड़ा हो या अजनबी हो, मौदबाना तौर पर आप पेश आते हैं काफ़ी। जैसे कुड यू पास मी द साल्ट, यानी कि आप मेहरबानी करके क्या मुझे ये दे सकते हैं। ऐसे अगर आपका कोई फ्रेंड्स होता है या आपके कोई कोलीग होते हैं जो आपके नज़दीक होते हैं, उनसे आप उस तरीके से बात नहीं करते, थोड़े फ्रीली माहौल में बात करते हैं, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, माइट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, माइट आई बोरो योर बाईसाइकिल, क्या मैं आपकी बाईसाइकिल उधार ले लूँ। इस तरीके के जुमले जो एंड में आ जाए, ले लूँ, वो हमारे पास बनते हैं माइट में। उम्मीद है आप लोगों को फ़र्क समझ में आया होगा। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी होती है, काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।